Hello from Japan. So, I have landed in Tokyo. It is currently 9 a.m. I have landed, I have done my immigration, I've done my customs and everything. And I've got the two most important things that I need to keep right now, the welcome Suica card, and I have my important thing, the Japan Rail Pass. जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, there I had the Japan JR voucher, but now once you land, you go to the JR counter, the Japan Rail counter, and you give them that voucher and you get this ticket. So mine is valid for 14 days, जिसके लिए I paid about 28,000, and I can't lose it because they don't reissue it. They don't reissue the same thing. You'll have to buy a new one. Your passport number is attached to it. And most convenient, कोई भी आपको information चाहिए हो यहाँ पे आइए. There are counters available in English as well, and you get all your Tokyo tourist information. You get pamphlets about Tokyo, you get everything, and you have information in English as well. Reserved ticket, you have to come here. Even you can get currency exchange. So JR Center, everybody is waiting. रिजर्व टिकट आपको शिनकानसेन या एयरपोर्ट से आपको जो अपनी डेस्टिनेशन जाना है तो यहाँ से लेनी पड़ेगी. बी प्रिपेयर फॉर लॉन्ग लाइन्स एट द JR, especially during peak hours, long line. I am going to 7-Eleven to have my first meal. I did see a Starbucks here at the airport, but they didn't have a seating area, so you could just buy your stuff and go outside. So hence I thought I'll try the 7-Eleven, because the 7-Elevens in Japan, उसकी बहुत बातें की हैं लोगों ने. जो मेरा स्विका कार्ड है वो मैंने लोड कर दिया है, एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई गॉट ना पॉकेट वाईफाई, क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क इधर अभी एयरपोर्ट पे तो है वाईफाई, लेकिन अदरवाइज़ जब आप बाहर निकलोगे, अगर आपको चाहिए वाईफाई, यू कैन गेट द पॉकेट वाईफाई. इट इज़ 700 रुपीज़ पर डे. मैंने 25th तक का लिया है, और 25th को पोस्टल बॉक्स में ही मेरे को वो डालना है, एंड फ्रॉम देयर दीज गाइज विल कलेक्टेड. अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आपको डेली कुछ 700 डेली जो रेंटल है वो वरना कटते जाएगा. तो दे गिव यू दिस एनवेलोप, और उसी में आपको डालना है. और जहाँ से भी आप वापस जा रहे हैं, अगर टोक्यो से जा रहे हैं तो मैं यहीं पे इनको रिटर्न कर सकता था, बट बिकॉज आई एम गोइंग बैक फ्रॉम ओकिनावा, आई एम गोना पुट इट इन अ पोस्टल बॉक्स. तो ये है, एंड आई एम वेरी वेरी हंग्री राइट नाउ. तो मैं जाता हूँ 7-Eleven, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ. चलिए. माई फर्स्ट मील आफ्टर लैंडिंग इन जापान, ट्यूना मेयोनीज, plum radish and turnip greens, black coffee, and picked it up from 7-Eleven. So the 7-Eleven is literally your lifeline here. Your Suica card works here. बस आप जाओ, अपना Suica card आपका अगर लोडेड है तो वो दे दो, कैश है तो कैश दे दो, and they have very good on the go meals, ready meals. So well, so I am now taking my first train ride in Japan, the famous JR route that we keep talking about. तो मेरी पहली राइड है, and I just showed you what I ate from 7-Eleven, but I must say लैंड करने के बाद ना थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया था, एंड स्पेशली बिकॉज लैंग्वेज का भी थोड़ा बैरियर था, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हो गया था when I had to get my pocket Wi-Fi or when I had to get my JR pass. तो थोड़ा confusing है, but जैसे like I was a little scared whether I will get onto the right train and stuff like that, but I must say that the authorities here, the locals here are quite helpful. आप उनसे पूछोगे, everybody has a smile on their face and they are eager to help. तो I am on the right train. तो नरीटा एयरपोर्ट से अब जो मैंने so I have to change the trains in between, because like I had told you in my earlier vlog, जो JR pass आपको मिलता है, that does not cover all the trains within Japan. तो I am going to go to Tokyo. I will get down at Tokyo. Tokyo से मेरे को सबवे लेना पड़ेगा, which are the different local trains. तो वहाँ के लिए मेरा Suica कार्ड चलेगा. So I have about 1 hour to my hotel. Japan Navitime is a very good app
that you should install before coming to Japan. उसमें प्रॉपर गूगल मैप्स नहीं, बट आई फील नावी टाइम इज़ मोर डिटेल्ड. उसमें एग्जैक्टली आपको वो बता देता है कि आपको कौन सी ट्रेन लेनी है, क्या लेनी है, डिपेंडिंग ऑन योर टाइमिंग. सो वो है. एंड आई मस्ट से द ट्रेन्स हियर आर really really good. At least this one that I'm sitting on right now, absolutely clean, especially जब आप मुंबई से आते हैं and you're used to the Mumbai local trains, so it's absolutely clean. They have separate space for baggage and stuff also. So yeah, it's been a good start to the Japan itinerary, and let's see what the day holds for us. तो जैसे जैसे मैं घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा, and I hope our day one is very very exciting. Next I'm going to see you from the hotel. Bye. So that's how you use a JR pass. You insert it from this side, the gates open and pop. Your JR pass pops out from the other side and you pick it up from there and go. So after changing 3 trains and after 1.5 hours from the airport, I have finally made it to Tokyo. मैंने चेक इन कर लिया है और रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको अपना स्वीट. सो दिस इज़ द अयोमा ग्रैंड होटल. और यहाँ ट्विन बेड्स का कल्चर बहुत है जापान में. आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज इफ समबडी हैज़ अ बिगर फैमिली बिकॉज ऑफ दैट, बट ट्विन बेड्स का, इफ दे आर 2 अडल्ट्स एंड दे आर शेयरिंग अ रूम, तो ट्विन बेड्स का काफ़ी कॉन्सेप्ट है. और द बेस्ट पार्ट, ये आपको एक एरियल व्यू मिलता है. एंड वाई? बिकॉज वी आर ऑन द 19th फ्लोर. इसके ऊपर सिर्फ एक और फ्लोर है. एंड जस्ट चेक दिस व्यू आउट. ब्यूटिफुल. पूरा नीचे आपको टोक्यो दिखता है और सामने वो जो आपको ये रेड वाला टावर दिख रहा है ना, दैट्स द टोक्यो टावर विच लाइट्स अप इन द इवनिंग. जैसे पेरिस में आईफिल टावर लाइट्स अप, वैसे ही दिस ऑल्सो लाइट्स अप. तो ये है, दिस इज़ माई स्टे फॉर द नेक्स्ट 3 days. बाकी आई मस्ट से द मेट्रो सिस्टम हियर, द ट्रेन सिस्टम इज़ वेरी 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 एफिशिएंट. एंड ऑफ कोर्स हमारा बॉम्बे या दिल्ली उतना क्राउड बिल्कुल भी नहीं है. इट्स यू गेट टू सिट आराम से. बाकी बहुत ही कन्वीनियंट है. बहुत ही रेगुलर हैं ट्रेन्स. थोड़ा लाइक आई सेड कि जब लैंड किया था तब वो होता ही है ना, जब आप एक नई जगह पे पहुंचते हो तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लगता है. सो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो गया था. बट देन धीरे धीरे जैसे एक ट्रेन पे घुसे, फिर दूसरी ट्रेन चेंज की, फिर तीसरी चेंज की, तो थोड़ा समझ आ गया. और जहाँ अटक रहे थे लोगों से पूछ रहे थे. एंड आई मस्ट से द पीपल आर वेरी वेरी हेल्पफुल. बहुत हेल्पफुल लोग थे जिनसे भी पूछा. इनफैक्ट आप पूछ रहे थे, वो लिटरली आपको ना, दे आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल कि आपके साथ नहीं 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 आप यहाँ से जाइए अपना काम छोड़ के. तो वेरी हेल्पफुल पीपल. दो ऑफकोर्स एवरीबडी इज इन अ रश हियर ऑल्सो. इट इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ मुंबई और दिल्ली इज़, वेर एवरीबडी इज़ इन अ रश. लेकिन काफ़ी हेल्पफुल हैं. ऑफकोर्स द इंडियंस ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, बट सेम. सो वेरी हेल्पफुल पीपल इन जापान. बाकी अभी यहाँ पे आई एम 4 hours अहेड. लाइक यू ऑल नो, जापान इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन. सबसे पहले सनराइज इधर ही होता है. सो वन ऑफ दीज डेज आई प्लान की यार जाके ना कहीं से सनराइज़ देखूँ, सो दैट मैं पूरी दुनिया में पहला बंदा हूँ जो सनराइज़ देखे. दैट्स वन ऑफ द एजेंडाज इन दिस जापान ट्रिप. बाकी अभी बज रहे हैं 12. एंड जनरली द होटल्स हियर गिव यू अ चेक इन एट 2 PM या 3 PM. 3 PM इज़ द स्टैंडर्ड टाइम. बट लकीली आवर स्वीट वॉज वेकेंट, तो मुझे अर्ली चेक इन मिल गया. आई एम गोना जस्ट सेटल डाउन, टेक अ शावर बिकॉज आई एम स्टिंकिंग. और बस उसके बाद आराम से लंच करके निकलूँगा मैं शाम को. एंड वी विल एक्सप्लोर जापान टुगेदर. बाकी मुझे कमेंट्स में आप बताते रहना, क्योंकि मैं 15 दिन हूँ जापान में. तो आप मेरे को बताइए कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए, क्या एक्सप्लोर करना चाहिए. और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो व्लॉग है मैं डे 1 का जल्दी ही आज ही एडिट करके डाल दूँ, या जैसे भी देखते हैं हाउ कैसे मेरा दिन जाता है. बट मेरा आइडिया ये है कि जैसे ही क्रिएट कर रहा हूँ जल्दी से एडिट करके इनको पोस्ट भी करूँ. पॉकेट वाईफाई मैंने ले रखा है, सो आई विल हैव वाईफाई विद मी 24/7. बाकी सेटल इन हो गया हूँ. बस अब जाता हूँ, थोड़ा नहाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, एंड देन आई विल
get out and explore Tokyo. So I'll see you from the streets now. Bye bye. मैं जब तक अपने बाकी काम कर रहा हूँ आप enjoy कीजिए ये अमेजिंग व्यू वल्लाह। Hello and welcome from Tokyo. तो भाई शाम के 4 बज रहे हैं इधर, विच मीन्स इंडिया में बज रहा होगा 1 सवा 1। मैं हूँ तैयार, ये है पूरा मेरा लुक। तो थोड़ा ओवर द टॉप है, थोड़ा एक्स्ट्रा है, आई नो, बट लाइक आई सेड टोक्यो में जो मैक्सिमम लोग जो मैंने देखा था जो कलर पहना हुआ था वो था ब्लैक। जब मैं रिसर्च भी अपनी कर रहा था गूगल पे और टोक्यो के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने काफ़ी जगह पे यही पढ़ा था कि लोगों को यहाँ पर ब्लैक पहनना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा पहला आउटफिट भी टोक्यो में थोड़ा ब्लैक हो, थोड़ा नहीं काफ़ी ब्लैक ग्रे, और ऑफ कोर्स शूज़ में थोड़ा कलर है, एंड देन द बैटमैन स्लिंग छोटा सा टू कंप्लीट द लुक। बाकी अब मैं बाहर जाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में, आई थिंक हाफ एन आवर में। आई जस्ट हैड कॉफ़ी। लंच मैंने बहुत ही लाइट किया था, कुछ फैंसी भी ट्राई नहीं किया था, एक सैंडविच खाई थी बस। अब क्योंकि डिनर के लिए मैं कुछ फैंसी चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, अगर बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ के जो प्लग पॉइंट्स हैं ये देखिए, ये ऐसे प्लग पॉइंट्स हैं और ये है आगे से। सो आई डोंट नो वेदर इज़ कॉल्ड अ बी टाइप और अ सी टाइप। तो हमारे जो इंडिया में होते हैं जो ऐसे, ये इसमें घुसता नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल, और अगर आपको इंडिया से लेके आना है तो इंडिया से आप ये वाला लेके आइए, वरना आपको यहाँ पे भी स्टोर से मिल जाएंगे। मैंने अभी तक नहीं ख़रीदा है बिकॉज माई होटल प्रोवाइडेड मी विद अ सब्सटीट्यूट, तो मुझे यहाँ मिल गया था। सो इफ़ यू स्टेइंग इन वन ऑफ द गुड होटल्स, आई एम श्योर वो आपको दे देंगे। बट इफ़ यू स्टेइंग इन बजट फ्रेंडली होटल्स, जो हम में से बहुत लोग चूज़ करते भी हैं, तो उसमें आई थिंक आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो आप वेल इन एडवांस वो ख़रीद लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वरना आप चार्ज ही नहीं कर पाओगे कुछ। इनफैक्ट राइट फ्रॉम एवरी प्लग पॉइंट इज़ लाइक दिस। जो हमारे इंडिया में प्लग पॉइंट होते हैं वो है ही नहीं। तो बस तैयार हूँ और निकलने वाला हूँ। कॉफ़ी मैंने पी है और निकलने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू हेड टू द फेमस शिबुया क्रॉसिंग। जब जापान की बात करते हैं, टोक्यो की बात करते हैं, तो शिबुया क्रॉसिंग की ही सबसे पहले लोग बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट क्रॉसिंग्स। तो चलिए वहाँ से अब हम मिलते हैं। टड़ा। तो अपने येन मैंने गिन लिए हैं और कहाँ कहाँ पर हमें खर्च करना है ये भी मैंने डिसाइड कर लिया है। और उसी के साथ साथ टोक्यो के नाम पर हमने पॉप की थोड़ी शैम्पेन, क्योंकि अब डेली तो होता नहीं है कि इंसान टोक्यो आता है, जापान आता है। तो 3 चीयर्स टू जापान। और अब हम चलते हैं बाहर। तो चेक दिस आउट, ये देखिए, अंधेरा 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 आपको लग रहा है? ऐसा लग रहा होगा जैसे शाम के 7, साढ़े 7, 8, 9 या 10 बज गए हों, राइट? जस्ट चेक दिस आउट। लेकिन अभी बजे हैं शाम के 5:30। जी हाँ, मैं निकल गया हूँ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ टोक्यो। जा रहा हूँ शिबुया क्रॉसिंग, विच इज़ अ 15 मिनट्स वॉक फ्रॉम माई होटल। बट लिटरली देखो मेरे पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई है। एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज क्योंकि द सन राइजेज the first here in Japan, so it also sets the earliest, and hence जो sunset है वो भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। But this is too dark। मेरे को ना मतलब 2-3 बार तो अपना टाइम देखना पड़ रहा था कि यार मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया, क्या हो गया। Turn right। तो बस अभी निकला हूँ और हेडिंग टू शिबुया क्रॉसिंग। बीच में बहुत ही क्यूट अच्छी अच्छी शॉप्स दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पे रुक जा रहा हूँ बार बार। अभी मेरे को कुछ अच्छा यहाँ पे दिखा है। तो मिलता हूँ आपसे फ्रॉम शिबुया क्रॉसिंग। तो ये है शिबुया क्रॉसिंग, और ज़रा मेरे पीछे देखिए, इतने सारे लोग एक टाइम पर यहाँ पर सिग्नल क्रॉस करते हैं। जब सिग्नल रेड होता है गाड़ियों के लिए, इतने सारे लोग, और इतने सारे लोग ना दुनिया के किसी भी जगह पर एक टाइम पर क्रॉस नहीं करते। दिस इज़ द बिजिएस्ट क्रॉसिंग
जस्ट चेक दिस आउट, इट्स अ विजुअल स्पेक्टिकल, बहुत मज़ा आया। और एक ऊपर ही स्टारबक्स है, तो आप जाइए स्टारबक्स में बैठ जाइए, अपनी कॉफ़ी ऑर्डर कीजिए और यहाँ विंडो वाली सीट पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से ही आपको मिलेगा ये बेस्ट व्यू। अभी ट्रैफिक के लिए ग्रीन है, इसलिए लोग रुके हुए हैं। सो जस्ट गो अ लिटिल अर्ली एंड गेट अ स्पॉट हियर एंड व्यू दिस। शिबुया क्रॉसिंग देखने के बाद अब टाइम था हमारा शिंजूकू जाने का। जी हाँ, शिंजूकू भी नाइट में बहुत फेमस है। हर जगह खुली रहती है, हसल है, बसल है और आपको सिटी की एक वाइब पता चलती है। तो बस अभी मैंने एग्ज़िट किया है एट शिंजूकू स्टेशन एंड आई अगेन गॉट लॉस्ट। हुई, मेरे हिसाब से 17 नंबर से निकलना था, बट 17 नंबर दिख ही नहीं रहा है। मतलब ट्रेन में सही चढ़ा था एंड देन आई अकॉर्डिंग टू मी इट्स एट द 17 नंबर एग्जिट, बट आई कुडंट सी द 17 नंबर एग्जिट। बट एनीवेज, तो मैं शिबुया से अपना ट्रेन लेके आई यूज द JR पास एंड आई केम टू शिंजूकू, बिकॉज शिंजूकू नाइट मार्केट्स एंड द नाइट लाइफ इज़ क्वाइट फेमस। शोर बहुत है बिकॉज ऑफ द ट्रेन। मैं थोड़ा कम शोर जब होगा तब वापस आके बात करता हूँ। हाँ, अभी शोर कम हो गया। डिड वी फिगर? I am currently lost. I'm trying to figure out because Shinjuku is quite a confusing station, but I'm trying to figure out. देखते हैं. I think from here. Finally, after roaming around for about 15 minutes, like literally, so I would tell you, I'll give you a heads up कि Shinjuku station जो है, it is one of the largest stations here and it is confusing. मतलब मैं 15 मिनट से सिर्फ गोल घूम रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट वेदर यूज माई JR पास और द IC कार्ड, सो आई डोंट रियली नो। जहाँ पे जो चल गया, JR इज़ फ्री फॉर मी ऑफ कोर्स बिकॉज आई ऑलरेडी पेड फॉर इट, एंड द IC वंस यू पुट इन, वंस यू चेक इन एट द काउंटर एंड देन व्हेन यू एग्जिट, सो अकॉर्डिंगली कितना आपने ट्रैवल किया उस हिसाब से वो काटते हैं। तो पता नहीं, मैंने जब स्टार्ट किया फ्रॉम शिबुया तब मैंने IC कार्ड लगाया था, और जब मैं अभी एग्ज़िट किया है तो मैंने अपने JR पास के थ्रू एग्ज़िट किया है। आई डोंट नो हाउ, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड नाउ आई हैव कम आउट। नाउ एज यू कैन सी, थोड़ा अब यहाँ पे बाहर की तरफ आ गया हूँ तो क्राउड कम है। एंड दे हैव टन्स ऑफ शॉपिंग प्लेसेस हियर। So inside the stations and everything, it's like a mini mall inside the stations. यार खाने की बहुत जगहें हैं, शॉपिंग आप कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेल कनेक्टेड, बट द फर्स्ट टाइम इट इज़ वेरी 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 कन्फ्यूजिंग। तो आई थिंक 1-2 दिन तो कम से कम लगेंगे जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ इट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू, अगेन आई एम अ लिटिल लॉस्ट, नाउ टू फिगर आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस स्टेशन and get to the Shinjuku market, which is famous for the nightlife, because I want to do dinner there. तो चलिए सीधे अब मैं आपको मिलता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ। I'll have to figure out and ask a few people, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। Do you find? This is the Japan tax-free shop, and apparently आपको phones, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ये है। So the phones are the cheapest in Japan. Phones and electronic items, laptops, phones. iPhone 15 Pro अभी रिलीज़ हुआ है, but the bad news is कि यहाँ पे भी सोल्ड आउट है। They don't really know कि स्टॉक में आएगा कब। अदरवाइज़ कुछ अच्छा 30,000 तक का डिस्काउंट है यहाँ पर। तो I thought that I'll pick up an iPhone 15 Pro Max from here, लेकिन they are saying कि यहाँ पे स्टॉक में है नहीं। एंड दिस जापान टैक्स फ्री शॉप इज़ वेरी नाइस, क्यों आपको टैक्स, इफ़ यूर अ टूरिस्ट विजिटिंग, तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है। आई मीन दे एट दिस पॉइंट दे विल चार्ज यू, बट आपको एक रिबेट कूपन मिलता है जो आप रिडीम कर सकते हो, तो आपको जो भी टैक्स है वो आपको रिफंड आ जाता है। तो इट वर्क्स आउट टू बी वेरी वेरी चीप बिकॉज दे वांट टूरिस्ट टू कम एंड शॉप इन द कंट्री। और अब चलते हैं, ढूंढते हैं शिंजूकू मार्केट। शिंजूकू, so the bars and the restaurants here are smaller in size and cheaper, but Authentic.
more authentic, but the thing is that you will get a lot of mixed crowd here, a lot of foreigner crowd also comes here. But there's a lot of waiting in most of the places, and I'm roaming around since 15 minutes. I've still not found a perfect place that I This want lane to is sit. relatively empty. Yeah. We can't get a table here. But this lane is empty. Go here. तो फाइनली मुझे इस बार में बैठने की जगह मिली, लेकिन यहाँ पर कॉकरोच वाइन, सी हॉर्स वाइन, स्नेक अल्कोहल सब मिल रहा था, लेकिन खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था. एंड मी, आई वॉज रियली रियली हंग्री, क्योंकि मैंने 1 बजे से कुछ नहीं खाया था. सो कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ पर इनके बार में बैठा, बट उसके बाद मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मुझे इस वक्त चाहिए था खाना. और ये देखिए, ये है फेमस जापान की स्नेक अल्कोहल. जी हाँ, बहुत फेमस है जापान में, वियतनाम में, थाईलैंड में. जापान में इसको हाबुशु बोलते हैं. तो अगर आप शिंजूकू के गोल्डन गाय जा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए कि जो बार्स का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है. 7 से 10 लोग ही आ सकते हैं एक टाइम पे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस हमेशा भरी होती हैं अगर आप स्पेशली 7 PM टू 10 PM के बीच में जा रहे हैं. और काफ़ी जगहों पर खाना नहीं है. हालांकि कुछ जगहें हैं जहाँ पर आपको खाना मिलता है, बट बी प्रिपेयर्ड. तो रामेन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा. रामेन इज़ वेरी वेरी फेमस इन जापान. इट इज़ अ डेलिकेसी. और काफ़ी ढूंढने के बाद, शिंजुकू के गोल्डन गाय लेन से निकलने के बाद, जब मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पर जाऊँ अच्छा खाना खाने, तो सामने मुझे दिखी ये रामेन वाली जगह. एंड अपेरेंटली आई आस्क्ड पीपल एंड इट्स वेरी वेरी फेमस. तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, एंड आई एम ट्राइंग द क्यूशू रामेन. अब देखते हैं कि भाई क्या सरप्राइज़ होगा. तो रामेन के साथ मैंने मंगाए हैं कुछ श्रिम्प डम्पलिंग्स, और ऐसा दिखता है ये रामेन का बोल. इसमें नूडल्स होते हैं, एग है, इसमें थोड़ा पोक है, थोड़ी वेजिटेबल्स हैं, और काफ़ी सूपी होता है. तो इन होल इट्स लाइक वन कंप्लीट मील. गर्मा गर्म है. अब अच्छा है, बुरा है, मुझे पसंद आया, नहीं आया, ये सब मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मुझे ज़ोरों की भूख लगी है. तो अभी सिर्फ खाते हैं, और इसका जो रिव्यू है हम देते हैं थोड़ी देर बाद. Hello, so I am just done with dinner. It is 9:48 PM. 10 बज गए almost. I showed you what I ate. Ramen, which had pork in it. I must say I don't know whether I was at the best ramen place or not, but I found it a little overrated. I didn't like the ramen that much. बल्कि in fact मेरे को तो थोड़ा undercooked भी लगा. But the shrimp dumplings were really nice. That was nice. Yeah. और आप सोच रहे हो कि पता है actually इस टाइम पे भी चश्मे पहन के घूम सकता हूँ मैं, क्योंकि लाइट देखो ना कितनी है. ऐसे लगेगा ही नहीं कि 10 बजे हैं. आई मीन इट इज़ जस्ट सो वेल लिट द इंटायर टोक्यो. ये देखो, ये ऐसा ही रहता है यहाँ पर. इट इज़ ऑलवेज सो लिट. आई शोड यू शिबुया, वो भी वैसे ही लिट रहता है. तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिकॉज फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे वॉन्ट टू गो टू मैकडोनल्ड्स. तो बस अब जाएंगे मैकडोनल्ड्स. सम ऑफ देम आर vegetarians and they want to eat French fries. So let's see, because I'm excited to go to McDonald's because I want to see the menu that they have and how different it is from the Indian menu. ये है vibe. तो यहाँ पर जापान में मैक्सिमम अच्छे रेस्टोरेंट्स के बाहर आपको ऐसे खाने की, जो भी उनके मेन्यू में खाना है, उसकी ऐसी फ़ोटोज़, आपको मॉक फ़ोटोज़ ये दिखेंगी. और जो खाना अंदर आपको सर्व होगा वो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत टाइम हम जब मेन्यू पढ़ते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है. तो इसलिए ये आपको पूरी प्लेटिंग मिलेगी. इनफैक्ट बियर्स के भी आपको कलर अलग अलग सब ग्लासेस में भर के वो फ़ोटोज़ होंगी, जिससे बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आपको कि क्या खाना है, क्या चूज़ करना है, इवन दो जब आपको मेन्यू समझ नहीं आता. McDonald's.
there is no vegetarian burger, there's nothing. Only if you want to eat french fries as a vegetarian आपके पास ऑप्शन है, वरना कुछ नहीं. ये फ्रेंच फ्राइज है, लेटिस है और एडमामे है जो आप खा सकते हो. One of my other friends, that person ate a chicken teriyaki, which is their best seller, which was very nice. But after my first day in Tokyo and my experience of going out to eat, I must say अगर आप vegetarian हो तो जापान आपके लिए नहीं है. आप बहुत excited नहीं होने वाले हो. मीठी चीज़ें खा लोगे, you'll eat sweet things and you'll be happy, but otherwise there are not many places which serve vegetarian. और करते में इक्का दुक्का थोड़ा sorted vegetables मिल जाएंगी, but उसके अलावा you're going to be really really disappointed. So keep that in mind before traveling to Japan. बाकी ये बस देखो यार, I mean yeah, I know Bombay does not sleep, but Bombay is not so lit at 10:30 at night. Just look at this. It is just so well lit. और बिल्कुल सही बोलते हैं वो भी अपने शेड्स पहन के रखिए जापान में, बिकॉज इट इज़ सो वेल लिट. इसलिए शेड्स मेरे साथ हैं. बस थोड़ा सा आई एम जस्ट रोमिंग अराउंड नाउ, नॉट रियली डूइंग मच. कहीं खाना हो गया है, बियर हो गई है. आई ट्राइड ओके एंड आई ऑल्सो शोड यू दोज ड्रिंक्स विच वर infused with reptiles, cockroaches, snails and sea horses and stuff. I didn't have the balls to try it today, but I'm definitely telling you कि कल या परसों, मतलब जापान छोड़ने से पहले, जाने से पहले मैं पक्का ट्राई करने वाला हूँ. ऑक्टोपस बॉल्स इज समथिंग आई रियली वांट टू ट्राई बिकॉज पीपल हैव सेड इट्स अ डेलिकेसी हियर. और ये दूसरा जो द स्नेक कौन सा वाला था, वो छोटा वाइपर, द वाइपर अल्कोहल काइंड ऑफ रियली एक्साइटेड मी. So I'm gonna try that. तो बाकी ये है. अब I'm just gonna roam around and that's it. Day 1 from Japan is done. अच्छा हाँ, और ये देखिए एक और चीज़ जिसने मेरे को डे 1 में बहुत फैसिनेट किया, ये है जापान की फेमस वेंडिंग मशीन्स. बस आपने सिंपली इसमें पैसे डालने हैं, चूज़ करना है आपको कौन सी ड्रिंक पीनी है, पानी चाहिए, कोला चाहिए, जो भी चाहिए, और नीचे से आपकी ड्रिंक आ जाती है और साथ में आपका चेंज अगर है तो आपको चेंज भी मिल जाता है. तो बहुत ही कन्वीनियंट है. बोलते हैं हर 20 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है यहाँ. So it's 11 PM और अब अगर आप देखेंगे मैं सबवे में आ गया हूँ. आई एम गोना टेक द ट्रेन बैक टू वेयर आई एम स्टेइंग. सो फ्रॉम शिंजूकू आई हैव टू गो बैक टू गिंजा, और फिर गिंजा से 5 मिनट्स का वॉक है मेरा होटल. नाउ ये सेम जो सबवे उस टाइम पे इतना बजिंग था, अब सारी दुकानें बंद हो गई हैं. सो इट्स बिकम, ये देखिए बाहर रोड्स आर बजिंग बट द सबवे, बिकॉज ऑल द शॉप्स हैव शट, हैव बिकम रियली रियली क्वाइट. बस तो ये आई थिंक इट्स 5 मिनट वॉक, देन द ट्रेन, देन आई गेट डाउन एंड अनदर 5 मिनट वॉक. सो इन 15 मिनट्स आई शुड बी बैक एट द होटल. डे 1 हैज़ बीन क्वाइट एक्साइटिंग. शिबुया क्रॉसिंग जाना था, वो हो गया. शिंजूका ट्राई करना था, शिंजूकू आई मस्ट से कि यार वो जो पूरा एरिया है ना जहाँ पे दे आर मोर देन 500 बार्स, आई मीन इट डिडंट एक्साइट मी मच इन द सेंस कि बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, बहुत ही छोटे. मतलब 7-8 लोग फिट हो जाएं तो अंदर आ जाएं तो पैक्ड हो जाता है. बहुत छोटे साइज़ के हैं. देयर इज़ नॉट इवन टू मच ऑन द मेन्यू देयर. So if you'll make friends because a lot of foreign tourists go there. People who like that vibe, ठीक है, but otherwise I didn't like it much. Maybe 3-4 days down the line when I want that kind of an experience I would, but today I wasn't up for it because also at that time I was feeling very very hungry. और वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही, मतलब आप लगा लो ना 7-8 लेन में अगर 500 आपको कैफ़ेज़ के ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट यू डू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज बिकॉज फॉरेनर्स के अमंग इट्स अ बिग हिट. एंड बट मैंने तो एक ड्रिंक वहाँ पे पी थी, कुछ खाया भी नहीं था बिकॉज द प्लेस दैट आई वेंट टू डिड नॉट इवन हैव फूड ऑन देयर मेन्यू. दे हैड नथिंग, दे जस्ट हैड ड्रिंक्स. तो ये था. तो आप देखिए अगर आपका मन हो, अगर काफ़ी दिन के लिए टोक्यो हो तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई शिंजूकू. बट अदरवाइज शिंजूकू में और भी जैसे द रामेन प्लेस दैट आई वेंट टू और अदर ऑप्शन, यू हैव टन्स ऑफ ऑप्शंस. तो ये रहा एक्साइटिंग फर्स्ट डे. गेट अप फॉर डे 2. कल भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें करेंगे. एक बार सुबह उठता हूँ, आपसे हेलो करता हूँ और फिर हम विल गो अबाउट हैविंग मोर फन इन टोक्यो. चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय.
तो ये था मेरा पहला दिन टोक्यो में। अब हम अगले व्लॉग में देखेंगे कि हम अगर एक दिन की टोक्यो की आइटिनरी में हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी चाहिए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा और उसका बजट क्या होगा।